Hello students, this is your Shashank sir and today is the day 8 of ARC Learning Division program and आज के टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल देखा था, आज वी आर गोइंग फॉर दी केमिकल कंट्रोल। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कि पहले क्या बोला गया है कि न्यूरल सिस्टम का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरल सिस्टम। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। Neural system provides point-to-point rapid coordination among organs. The neural coordination is fast. It is fast, but it is short-lived. As the nerve fibers do not innervate the cells of the body, the cellular function needs to be continuously regulated. Cellular function needs to be continuously regulated. Thus, a special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. This function is carried out by hormones. ठीक है, so क्या बोला है कि न्यूरल सिस्टम तो ठीक है, इट इज प्रोवाइडिंग रैपिड पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स, ठीक है, बट द न्यूरल सिस्टम इज फास्ट बट इट इज शॉर्ट लिव्ड। तो लॉन्ग रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको देखें कि स्लोली इसको रेगुलेट करके लेके जाना है, वो चीज को अगर हम देखें, दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ द न्यूरल साइड। एज द नर्व्स फाइबर्स डू नॉट इंटरवेट द सेल्स ऑफ द बॉडी, द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूअसली regulated. Thus, a special kind of coordination and integration is required, which is provided by the hormones. The neural system and the endocrine system, as we know, jointly coordinate and regulate the physiological functions of the body, right? So that is the importance of these hormones which are coming from our endocrine glands, right? Now, what are the endocrine glands? हमको पहले ही मालूम है स्ट्रक्चरल से। These are ductless glands which directly pour their secretions into the blood. They are ductless glands which directly pour their secretions into the blood. ठीक है, right? What are these secretions? These secretions are nothing but hormones. ये secretions क्या है? These secretions are nothing but hormones. Now, what is the definition of hormone? हार्मोन का डेफिनेशन क्या है? बेसिकली हमको मालूम है केमिकल मैसेंजर है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल टर्म अगर हम लोग लगा लें, इफ यू टेक अबाउट सम टेक्निकल टर्म्स, दीज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। दीज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, मतलब अगर आप 1 लीटर भी हार्मोन पी लो, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, आप ऐसे समझ लो, करेक्ट है। सो दीज सिक्रेशंस आर हार्मोन्स, right? These are non-nutrients. That means they play no role in nutrition. They play no role in nutrition and act as an intercellular messengers. They act as an intercellular messengers between the cell. एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, between the cell, right? क्या करते हैं? वो मैसेज कैरी करते हैं, करेक्ट है, राइट? एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, and are produced in what? And are produced in trace amounts. ठीक है, they are produced in trace amounts. So these hormones, what the definition, right? What are these hormones? These hormones are non-nutrients, intercellular messengers, right? Which are produced in trace amounts, right? Now, the invertebrates have a simple endocrine system. With very few hormones, whereas vertebrates, as our neural system, the vertebrates, many molecules act as hormones and provide integration. ठीक है, करेक्ट है, ओके। नाउ हम लोग का जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज एंड डिफ्यूज्ड सेल्स एंड टिश्यूज, राइट? सो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज है, जिनका फंक्शन ही क्या है? टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, राइट? एंड they are also supported by diffuse cells and tissues. These diffuse cells and tissues, as and when required, वो hormone produce कर सकते हैं। समझ में आया, right? So what are the organized endocrine bodies in our body? Pituitary gland, pineal, thyroid, adrenal, parathyroid, pancreas, thymus, gonads, which include testes and ovaries as well. उसके अलावा हमारे पास क्या है? डिफ्यूज सेल्स एंड टिश्यूज, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लीवर्स में, किडनी में, हार्ट में। समझ में आया, करेक्ट है। सो बोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज एंड डिफ्यूज्ड सेल्स एंड टिश्यूज, दे आर द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये लोग बने ही है किस लिए? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज टू सीक्रेट हार्मोन्स, राइट? ये किस लिए? ये सपोर्ट करते हैं इनको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय सप्लाइंग हार्मोन्स, ठीक है, राइट?
सो व्हेन यू लुक एट दैट हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद बोलेंगे, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, राइट, उसके बाद पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड है, पैनक्रियस है, एड्रिनल है, एंड टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, करेक्ट है। सो दीज आर दी एंडोक्राइन बॉडीज, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। नाउ अभी स्टार्ट किससे करते हैं? अभी स्टार्ट हम लोग करेंगे बाय लुकिंग एट इट ब्रीफली, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से, ठीक है। बिकॉज हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी दोनों ही इंटीग्रेटेड है एक साथ, राइट। सो व्हेन यू लुक एट दिस, दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, और ये रहा आपका पिट्यूटरी जो एक स्टॉक की तरह ये बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द पिट्यूटरी। नाउ दिस पिट्यूटरी का 3 डिवीजन है, राइट। दीज आर, एक तो आपका क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा वाला क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस, posterior pituitary is also known as neurohypophysis, ठीक है, neurohypophysis। and anterior pituitary is also known as pars distalis, posterior pituitary is also known as pars nervosa, और इन दोनों के बीच में क्या है pars intermedia, ठीक है। so the pituitary you have this anterior pituitary and this is the posterior pituitary, ठीक है। ये anterior pituitary है, ये posterior pituitary है, right। now when you look at the इंटीग्रेशन विद द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अभी हमको क्या मालूम था कि हाइपोथैलेमस हैड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास, हाइपोथैलेमस हैड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। नाउ व्हाट आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर सेल्स व्हिच आर नर्व सेल्स बट मॉडिफाइड फॉर सिक्रेशन। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रेशंस। नाउ इसी हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के कनेक्शंस के हिसाब से मेरे को एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंस करने में इजी होता है। कैसे बताता हूं कि अगर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस आर डायरेक्टली एम्बेडेड इन द पिट्यूटरी पार्ट, वो क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है इसका एंडिंग्स डायरेक्टली कहां पे है पिट्यूटरी में, जिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी में डायरेक्टली लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बट व्हेन यू लुक एट दिस वन, यहां पे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है दे आर कनेक्टेड विद दिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टल सिस्टम, करेक्ट है। तो द पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी व्हिच इज कनेक्टेड विद द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सिस्टम, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग ने ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो इसको, ठीक है, कि जिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स डायरेक्टली कनेक्शन बैठाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और जिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का कनेक्शन थ्रू अ पोर्टल सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आया? एंड इफ यू रिमेंबर आवर बॉडी हैड हमारे पास 2 पोर्टल सिस्टम थे, एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो इंटेस्टाइन टू लिवर जाता था, और एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो हाइपोथैलेमस से कहां जाता था एंटीरियर पिट्यूटरी। सो दिस इज दैट पोर्टल सिस्टम, दिस इज द पोर्टल सिस्टम जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। नाउ ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस सिक्रेशन करेगा, क्या सिक्रेशन करेगा? बेसिकली सम हार्मोन्स, जैसे इस वाले पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले अगर हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को देख ले, दीज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। बेसिकली वन इज अ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, अनदर इज अ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। यू हैव सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड अ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। The supraoptic nuclei and paraventric nuclei क्या करेगा? They secrete hypothalamic hormones. They secrete hypothalamic hormones क्या? ADH and oxytocin. They secrete hypothalamic hormones ADH and oxytocin. Right? तो posterior pituitary का function क्या हो गया? What is the function of posterior pituitary? The posterior pituitary stores and releases hypothalamic hormone ADH and oxytocin. The posterior pituitary stores and releases hypothalamic hormones ADH and oxytocin. ठीक है? ये स्टोर कर रिलीज करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। दैट मींस पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैन नॉट मेक इट्स ओन हार्मोन, ये खुद का हार्मोन नहीं बना सकता, इसका खुद का हार्मोन नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, राइट। सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, सुप्राऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आता है,
कहां पे स्टोर्ड रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अल्टीमेटली क्या करेगा? स्टोर्स एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ADH एंड ऑक्सीटोसिन। Whereas when you come to this part, right, the neurosecretory cells, they यहाँ का इस पार्ट का they are also secreting hormones, releasing hormone and inhibiting hormone. This releasing hormone and inhibiting hormone, it travels to the hypophyseal portal system. It travels to what? It travels to the hypophyseal portal system and it acts on anterior pituitary. It acts on anterior pituitary. अभी anterior pituitary के ऊपर कैसे काम करेगा? This anterior pituitary has trophic cells. They have trophic cells. They have 5 type of trophic cells. तो जब ये hypophyseal portal system से releasing या फिर inhibiting hormone आता है, they act on the anterior pituitary. Anterior pituitary के कौन सा part में? Those 5 trophic cells. And in this response, trophic cells releases hormones. So anterior pituitary can produce their own hormones. So anterior pituitary releases trophic hormones. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, so anterior pituitary releases trophic hormones. Now when you come to this, what are the trophic cells and what are the trophic hormones that you get? Now the 5 type of trophic cells that I was talking about, पहला वाला कौन है? सोमैटोट्रॉफिक सेल। दूसरा वाला क्या है? थायरोट्रॉफिक सेल। तीसरा वाला कॉर्टिकोट्रॉफिक। फोर्थ gonadotrophic, 5th lactotrophic. So what are the 5 different types of trophic cells that are present in your anterior pituitary? They are somatotrophic cells, thyrotrophic cells, corticotrophic cells, gonadotrophic cells and lactotrophic cells. फिर से क्या क्या है? somatotrophic cells, thyrotrophic cells, corticotrophic, gonadotrophic and lactotrophic. Clear है? समझ में आया? Now what are the hormones that are released? Somatotrophic cells क्या रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन. These are the hormones of anterior pituitary. किसका हार्मोन्स है? एंटीरियर पिट्यूटरी. सोमैटोट्रॉफिक सेल क्या हार्मोन रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन. थायरोट्रॉफिक सेल क्या रिलीज करेगा? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH, राइट. कॉर्टिकोट्रॉफिक क्या क्या रिलीज करेगा? एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, करेक्ट. गोनाडोट्रॉफिक क्या रिलीज करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. व्हेयरएज लैक्टोट्रॉफिक क्या रिलीज करेगा? PRL या फिर प्रोलैक्टिन. क्या रिलीज करेगा? PRL या फिर प्रोलैक्टिन. सो these all hormones are produced by whom? These all hormones are produced by your anterior pituitary. Now 2 स्टेटमेंट्स आप याद करके रखो, यहां पे काम बन जाएगा कि हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, दिस एंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी आर क्या है? दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स. दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स. ठीक है, ये प्रोटीन्स है. ठीक है, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स. ठीक है, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स, राइट. एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर ट्रॉफिक हार्मोन्स. What is trophic hormone? These are most of the hormones except for the growth hormone. Most of the hormones are trophic hormones. ये क्या करता है? These trophic hormones act on other glands, right, and induce them to produce hormones. समझ में आया कि नहीं आया? कि trophic hormones वो type of hormones होते हैं जो दूसरे gland को stimulate करते हैं कि भाई तू अपना hormone produce कर. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. So hormones of anterior pituitary are proteinaceous non-nutrient, right, protein non-nutrients, and most of these hormones are trophic hormones. Clear hai? Okay, right. Now when we start with summarizing the points of the hormones of anterior pituitary, पहला most important hormone क्या है? growth hormone. ये क्या है? growth hormone. Now growth hormone क्या करेगा? What would be the growth hormone doing? The growth hormone releases growth stimulating factor. growth hormone क्या रिलीज करता है? growth stimulating factor. अभी growth stimulating factor क्या करेगा? It controls the growth of bones, cartilage, body tissues. बॉडी का ग्रोथ कंट्रोल करना है ना, बॉडी का ग्रोथ बढ़ाना है. तो बॉडी का ग्रोथ अगर बढ़ाना है तो किस में ग्रोथ बढ़ाएगा? बोन्स का ग्रोथ करेगा, कार्टिलेज का ग्रोथ करेगा, बॉडी टिश्यूज का ग्रोथ करेगा, तभी ना हमारा ग्रोथ बढ़ेगा. है कि नहीं है? राइट. हाइट, मसल मास तब कैसे बढ़ेगा? जब बोन्स में ग्रोथ होगा, कार्टिलेज में ग्रोथ होगा, बॉडी टिश्यूज. ठीक है. और ग्रोथ के लिए आपको कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म चाहिए. ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म. सो दस द ग्रोथ हार्मोन आल्सो controls the metabolism of carbohydrates, proteins and lipids. It also controls the metabolism of carbohydrate, protein and lipid. उसका भी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है. ठीक है.
करेक्ट है. सो व्हाट डज द ग्रोथ हार्मोन इज डूइंग? द ग्रोथ हार्मोन रिलीजेस व्हाट? ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स. ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करता है? कंट्रोल्स ग्रोथ. किसका? बोन्स का, कार्टिलेज का, बॉडी टिश्यूज का. किसका किसका? बोन्स का, कार्टिलेज का, बॉडी टिश्यूज का. करेक्ट है, राइट. एंड दस इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट. वो कहां से लेके आता है? बाय मेटाबॉलिज्म, कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म. किसका मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड. किसका मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड. क्लियर है? तो ये तो इसका फंक्शन हो गया. हमको क्या याद रखना है? डिसऑर्डर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर कैसे आएगा? किसी भी चीज का हार्मोन्स का डिसऑर्डर उसके लेस सिक्रेशन से या फिर ज्यादा सिक्रेशन से ही आता है. बिकॉज हार्मोन्स को आप एक बैलेंस्ड फॉर्म में चाहिए होता है. टू वर्क देम प्रॉपरली दे नीड टू बी सीक्रेटेड इन अ बैलेंस्ड फॉर्म. उससे कम जो जितना चाहिए उससे कम सीक्रेट होगा तब भी प्रॉब्लम होगा, उससे ज्यादा सीक्रेट होगा तब भी प्रॉब्लम होगा. तो हर की चीज में आपको हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपरसिक्रेशन दिखने को मिलेगा. करेक्ट है, राइट. अगर हाइपोसिक्रेशन होता है कब? एट एन अर्ली स्टेज. एट एन अर्ली स्टेज अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है कि ग्रोथ हार्मोन कम आया तो इसको क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज वुड कॉज व्हाट? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. ये क्या करेगा? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. जो स्टंटेड ग्रोथ होता है ना, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, राइट. इनका ग्रोथ नहीं होता है, इनका हाइट नहीं बढ़ता है, ठीक है. स्टंटेड ग्रोथ वाले जो होते हैं, राइट, तो इनको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. ये फिजिकली और मेंटली नॉर्मल होते हैं बट हाइट वाइज इनका हाइट क्या होता है? छोटा होता है. समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है. अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, राइट, ज्यादा सिक्रेशन हो गया कब? एट एन अर्ली एज. एट एन अर्ली एज अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो इट कॉजेज व्हाट? इट कॉजेज जाइगेंटिज्म. जाइंट बन जाते हैं, जाइंट, ठीक है, जाइगेंटिज्म की तरह होता है. सो एट एन अर्ली एज अगर हाइपर सिक्रेशन होता है जाइगेंटिज्म होगा. बट अगर एट एन एडल्ट स्टेज अगर हाइपर सिक्रेशन होता है, एट एन एडल्ट स्टेज अगर हाइपर सिक्रेशन होता है, इट कॉजेज डिफॉर्मिटीज इन द फेशियल बोन. इट कॉजेज डिफॉर्मिटीज इन द फेशियल बोन, स्पेशली लोअर जॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली. ठीक है, राइट. सो अगर हाइट इंक्रीज करने के लिए आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, जिसके बाद हमारे बोन्स का ग्रोथ एक्चुअली में नहीं होता है बिकॉज वहां पे कार्टिलेज प्लेट नहीं रहते हैं, अगर आपने ग्रोथ हार्मोन्स ले लिया तो अगर आपका कार्टिलेज प्लेट नहीं है लॉन्ग बोन्स में तो क्या होता है ना कहीं से तो ग्रो होना का बोन ग्रो होगा. तो बेसिकली फेशियल बोन्स में ग्रो हो जाता है पहले, ठीक है. सो लोअर जो बाहर निकल के चला आता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमेगेली. क्लियर है? सो दिस वाज दी हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. पहला वाला ग्रोथ हार्मोन था. दूसरा, इफ यू लुक एट दैट ट्रॉफिक हार्मोन्स का मैंने बात बोल रहा था कि ये ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या थे? दीज वर हार्मोन्स व्हिच वुड एक्ट ऑन अदर ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस अदर हार्मोन्स. तो नेक्स्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड. ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? थायरॉक्स T3 एंड T4, ठीक है, थायरॉक्सिन रिलीज कर देता है, राइट. सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड व्हिच रिलीजेस द थायरॉक्सिन. ठीक है. Whereas कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स को देख लो. एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH क्या करते हैं? इट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इन रिस्पॉन्स क्या रिलीज करेगा? कॉर्टिसोल. कहने का मतलब है कि ये खुद एक हार्मोन है, राइट, लेकिन ये किस पे काम कर रहा है? दूसरे ग्लैंड में. इन दैट रिस्पॉन्स वो वाला ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है. ट्रॉफिक हार्मोन है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन. ठीक है, राइट. दूसरा क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज ऑल्सो कहां से निकल के आता है? बेसिकली पार्स इंटरमीडिया से. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकल के आता है? पार्स इंटरमीडिया से. ठीक है, तो एक कलर चेंजिंग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? कलर चेंज, रंग बदलता है. ठीक है ना, राइट. ह्यूमंस में क्या है? वेस्टिजियल है. ह्यूमंस में दिस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज वेस्टिजियल. वैसे ह्यूमंस अपना नियत तो नहीं बदल सकते ना टाइम आने पे सब लोग रंग बदलते हैं, राइट. टेंडेंसी है बिकॉज ये हार्मोन था. समझ में आया कि नहीं है? राइट. सो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिएट से रिलीज होता है, लेकिन दिस इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस. ठीक है. गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको बहुत डिटेल से देखेंगे. जस्ट यहाँ पे एक समरी है. गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स मेल्स के लिए अलग होगा, फीमेल्स के लिए अलग होगा. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, कि आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे भी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहाँ पे भी ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहाँ पे भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, लेकिन एक्शन, द एक्शन इज डिफरेंट.
In case of males, the luteinizing hormone acts on what? In case of males, the luteinizing hormones acts on your Leydig cells. Leydig cell के ऊपर act करता है और क्या release करता है? Leydig cells in response टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है. क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है एंड कंट्रोल्स दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. करेक्ट है. whereas follicle stimulating hormones in case of males, follicle stimulating hormones in case of males किस पे एक्ट करेगा? Sertoli cells. किसके पे एक्ट करेगा? Sertoli cells. and Sertoli cells would release what? इनिबिन भी रिलीज करेगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स भी रिलीज करेगा. स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स एंड इनिबिन रिलीज करेगा. करेक्ट है. राइट. ओके. कमिंग टू फीमेल्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या स्टिमुलेट करेगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स. राइट. फॉलिकल्स डेवलप करेगा व्हिच विल इन रिटर्न वो लोग क्या रिलीज कर देंगे? एस्ट्रोजन. whereas luteinizing हार्मोन क्या स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट ओवुलेशन, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. ओवुलेशन के बाद फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्या सीक्रेट कर देगा? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन एक्सेट्रा. समझ में आया? करेक्ट है. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन फंक्शन अलग अलग. इन केस ऑफ मेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन Leydig cells which in return releases क्या? टेस्टोस्टेरोन. स्पर्मेटोजेनेसिस देखता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करता है, इनिबिन रिलीज करता है. In case of females, the follicle stimulating hormone क्या करता है? It controls the development of follicles और developing follicles क्या रिलीज कर देता है? एस्ट्रोजन. whereas luteinizing hormone क्या स्टिमुलेट करता है? ओव्यूलेशन. एंड ओव्यूलेशन के बाद फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन. समझ में आया? क्लियर है? ओके. कमिंग टू दिस लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन. लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन को दो और नाम से जाना जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोट्रॉफिक हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन. मेमोट्रॉफिक हार्मोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड. इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड. और लैक्टोजेनिक हार्मोन इसलिए करते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन दी मेमोरी ग्लैंड. इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन दी मेमोरी ग्लैंड. समझ में आया? राइट. So this is also called as memotrophic hormone because it causes the development of mammary glands. It causes the development of mammary glands. Whereas it also called as lactogenic hormone because it causes the production of milk in the mammary gland. So lactotrophic hormone is also, or prolactin is also called as memotrophic as well as lactogenic. ठीक है? Right? Now prolactin का एक inhibitory effect भी है जो human reproduction में पढ़ेंगे कि during lactation period the first 6 months क्या करते हैं ना? prolactin बहुत high होता है. राइट. प्रोलैक्टिन बहुत हाई होता है एंड दिस हाई प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स द GnRH सिक्रेशन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन बंद कर देता है और वहां पे जो नो देयर इज बिकॉज ऑफ नो GnRH देयर इज नो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो देयर वुड बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच इज आल्सो नोन एज लैक्टेशनल एमिनोरिया. समझ में आया? सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ योर प्रोलैक्टिन. क्लियर है? नाउ न्यूरोहाइपोफाइसिस का भी तो है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बेसिकली हम लोगों ने इसका पूरा देखा ही है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट स्टोर्स एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ADH एंड वैसोप्रेसिन, एक ही है, एज वेल एज ऑक्सीटोसिन. नाउ ADH एंड वैसोप्रेसिन का तो मेरे को मालूम ही है, कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम व्हाट? डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूबल, मतलब कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT. whereas ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. अच्छा, स्मूथ मसल्स कहां कहां पे स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन करेगा? एक तो हमको सबसे मालूम है कि ऑक्सीटोसिन कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स. ऑक्सीटोसिन कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स जो पार्चुरेशन में हेल्प करता है कि नहीं है? करेक्ट है. दैट इज व्हाई ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड एज द बर्थ हार्मोन. इसको क्या बोलते हैं? इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं. whereas ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन दी मेमोरी ग्लैंड. से मेमोरी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. दस इट कॉजेज द इजेक्शन ऑफ द मिल्क. दस इज कॉजेज द इजेक्शन ऑफ द मिल्क एंड दिस ऑल्सो नोन एज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. क्लियर है? राइट. सो दिस वाज ऑल द हार्मोन्स ऑफ योर पिट्यूटरी. ये क्या था? हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी था. ठीक है? राइट. अच्छा, अभी अगर तुम देखो कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों ही आ रहा था. इट वाज हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, इट वाज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड. राइट. ठीक है. तो रिलीजिंग हार्मोन जो ये कहां से है? हाइपोथैलेमस. इनहिबिटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस में आएगा. ठीक है. जैसे रिलीजिंग हार्मोन क्या था? सोमाटोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन.
वो सोमैटोट्रॉफिक सेल पे काम करता था, क्या रिलीज करता था? ग्रोथ हार्मोन। अभी ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप कौन करवाता है? इट इज सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, राइट, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन प्रोलैक्टिन, राइट, प्रोलैक्टिन है। सो लैक्टोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन कमिंग फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, ट्रॉफिक सेल में काम करेगा, क्या रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन। अभी प्रोलैक्टिन को कौन रोकेगा? डोपामाइन। प्रोलैक्टिन को कौन रोकेगा? डोपामाइन। तो यहाँ पे एक दो चीज ये याद रखना है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का बात बोले और प्रोलैक्टिन का बात बोले, इनका जो इनिबिटरी हार्मोन है वो सोमैटोस्टैटिन एंड डोपामाइन है। इनिबिटरी जो फैक्टर है सोमैटोस्टैटिन एंड डोपामाइन है, दोज आर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। बट व्हेन यू लुक एट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका जो रेगुलेशन है, इनका रेगुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है मालूम है? फीडबैक पे, कि बॉडी पे है कि नहीं। इनका रेगुलेशन कैसे डिपेंड होता है? इनका रेगुलेशन डिपेंड करता है फीडबैक पे। क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू द प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कमिंग टू द प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या है? अब स्टार्टिंग में क्या है? पीनियल ग्लैंड, राइट, पीनियल ग्लैंड। नाउ पीनियल ग्लैंड हमारे आइज ऑप्टिक नर्व के साथ रिलेटेड है। पीनियल ग्लैंड हमारे ऑप्टिक नर्व्स के साथ रिलेटेड है, बिकॉज पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है, पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मेलाटोनिन। इसका जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन का लेवल बॉडी में किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लाइट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लाइट के ऊपर। कि अगर लाइट ज्यादा है मेलाटोनिन क्या होगा? कम। इफ द लाइट इज मोर मेलाटोनिन इज लेस। इफ द लाइट इज मोर मेलाटोनिन इज लेस। और अगर लाइट कम है, इफ द लाइट इज लेस melatonin is more. If the light is less, melatonin is more. So pineal gland directly optic nerve से related है. What are the functions of the pineal gland? Right? Pineal gland controls our 24-hour cycle, sleep wake cycle, या फिर इसको circadian rhythm भी बोलते हैं. This is circadian rhythm. ठीक है? This is also known as circadian rhythm. So 24-hour cycle, sleep wake cycle maintain करता है. It regulates metabolism. It regulates pigmentation, menstrual cycle में भी effect लाता है, and it also controls the body temperature. It also controls the defense capabilities of our bodies. ठीक है, right? So direct to the point questions. Controls 24-hour cycle, sleep wake cycle, circadian rhythm, regulates metabolism, pigmentation, menstrual cycle, controls defense capabilities of the body, and also regulates our body temperature. ठीक है, body temperature. This is the functions of your pineal gland. In short, this is the function of pineal gland. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है कि थायराइड ग्लैंड पहले क्या है, आपको क्या देखना है? इट इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। इट इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के आइदर साइड, ट्रेकिया के आइदर साइड में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, right? Now both the lobes, left and right lobes are connected by a thin flap of connective tissue. It is connected by a thin flap of connective tissue which is known as isthmus, ठीक है, right? And it is made up of follicular cells and stromal tissues. It is made up of follicular cells and stromal tissues. तो अगर आप इसका एक क्रॉस सेक्शन बनाओगे, तो ये आपका हो जाता है follicular cells. These are the follicular cells, right? And this is the stromal tissues. इसके अलावा आपको बाहर में क्या दिख जाएगा? आपको बाहर में पैराफॉलिकुलर सेल्स दिख जाएगा which releases thyrocalcitonin, which releases another hormone that is called as thyrocalcitonin. ठीक है, now थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ट्राइआइडोथायरोनिन T3 एंड थायरोक्सिन T4. थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ट्राइआइडोथायरोनिन T3 एंड थायरोक्सिन T4. फंक्शन क्या है? डायरेक्ट, वी आर कमिंग टू द पॉइंट. फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स या फिर रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR. बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म चलता है, बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म चलता है, दैट इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय योर थायराइड. ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. ऑल्सो कंट्रोल्स द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ऑब्वियसली BMR के साथ साथ, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ इनका मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल रहता है. इट हेल्प्स इन RBC formation, very important. It helps in RBC formation. It also helps in maintaining water and electrolyte balance in the body. That means osmoregulation में भी help करता है. Correct? So what are the 4 important functions? Direct statement based question. What are the 4 important functions of your thyroid? Right? Controls and regulates basal metabolic rate, BMR. Controls the breakdown of lipid, protein, carbohydrate. Helps in RBC formation. Helps in maintaining water, electrolyte balance in the body. Clear है?
right? Now what are the disorders? Disorders are very very important in case of thyroid gland. Disorders are very very important. जैसे hyposecretion and hypersecretion. Hyposecretion क्या होगा? Due to absence of iodine. अगर आयोडीन नहीं है, ठीक है, आयोडीन नहीं है तो आपका थायराइड सिक्रेशन नहीं होगा. इट कॉजेज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट causes the enlargement of thyroid gland which is called as the simple goiter. तो simple goiter यहाँ पे जो enlargement हो जाता है thyroid gland का, this is due to the absence of iodine, right? In young females क्या होता है ना, right? It causes irregular menstrual cycle. It causes irregular menstrual cycle करता है, ठीक है. This is very common problem, right? कि जब आप बेसिकली जब बाहर का जंक फूड सब ज़्यादा खाते हो, there are certain chemicals that mimic the thyroid. तो वो जंक फूड ज़्यादा खाने से क्या होता है ना, बॉडी में क्या होता है, वो फीडबैक मैकेनिज्म में है. इफ़ यू रिमेंबर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड प्रोडक्शन के लिए वो फीडबैक मैकेनिज्म है. तो जब ये थायराइड हार्मोन को मिमिक करने लगता है तो बॉडी को क्या लगता है कि थायराइड हार्मोन है इनफ मात्रा में, तो बॉडी थायराइड प्रोड्यूस नहीं करता है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करने से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है. और ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर हो जाता है तो वो पीसीओडी में चला जाता है, राइट? पीसीओडी का प्रॉब्लम आ जाता है. पीसीओडी होता है तो वेट गेन होता है तो फिर से ओवरीज और क्रश हो जाता है, तो और भी हार्मोनल डिसबैलेंस होके अगर आप इसको अनट्रीटेड रखोगे इट विल फर्दर ट्रांसफर इनटू पीसीओएस, ठीक है. तो फीमेल्स के लिए ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है. सो हाइपोसिक्रेशन इट कॉजेज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया, एबनॉर्मल फीटस बनता है. एबनॉर्मल फीटस जिसका लो आईक्यू, मेंटली रिटार्डेड होता है, डेफ एंड म्यूट होता है, थिक स्किन होता है, राइट? सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एबनॉर्मल फीटस बनेगा विथ लो आईक्यू, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, डेफ एंड म्यूट हो सकता है, थिक स्किन हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीटेनिज्म. इसको क्या बोलते हैं, क्रीटेनिज्म बोलते हैं, ठीक है. सो दिस वाज योर हाइपोसिक्रेशन. हाइपरसिक्रेशन होता है तो बेसिकली हाइपरसिक्रेशन तभी होगा जब देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू कैंसर, ठीक है. तो इससे क्या क्या होता है, बीएमआर हाई हो जाता है. ऑब्वियसली बीएमआर हाई हो गया, बीएमआर हाई हो जाएगा तो आपका बॉडी वेट लूज हो जाएगा, यू विल लूज बॉडी वेट. उसके बाद क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, राइट? देन देयर इज ऑल्सो म्यूकस फॉर्मेशन बिहाइंड द आईज, और धीरे धीरे आईज बॉल क्या होता है, सॉकेट के बाहर चला आता है, प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल्स, ठीक है, right? So all of this falls under the exophthalmic goiter. It falls under the exophthalmic goiter which is also called as your Graves disease. इसको क्या बोलते हैं, Graves disease बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है. So this was your thyroid gland with all these disorders. इसके अलावा थायराइड ग्लैंड में आपको और क्या मिलेगा, ये जो अगर आपने ये वाला डायग्राम अगर ठीक से अगर देखा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अपार्ट फ्रॉम स्ट्रोमल टिश्यूज एंड फॉलिकुलर सेल्स मेरे को पैराफॉलिकुलर सेल्स भी मिलता है. आई गेट पैराफॉलिकुलर सेल्स. ना पैराफॉलिकुलर सेल्स का क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीजेस व्हाट, थायरोकैल्सिटोनिन. पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज करता है, थायरोकैल्सिटोनिन. ना थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल. थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल. क्या रेगुलेशन करता है ब्लड कैल्शियम का, इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इन द लिवर, ठीक है, इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम. थायरोकैल्सिटोनिन जो रेगुलेशन करेगा ये क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम. कैसे, बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन्स. दैट मीन्स ये बोन्स होगा, बोन्स के ऊपर वो क्या करेगा, बोन्स के ऊपर ये कैल्शियम आयन को ऐसे चिपका देगा. इट विल कॉज द कैल्शियम आयन टू गेट स्टक और स्टिक कर देगा. किसके ऊपर स्टिक कर देगा, बोन्स के ऊपर. एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन होने से बोन्स के अंदर चला जाएगा. एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस के ऊपर लग जाना, ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली बोन डेंसिटी क्या होता है, बोन डेंसिटी इंक्रीजेस. इससे क्या होता है ना, हमारा जो बोन डेंसिटी होता है, द बोन डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है. तो पहला तो यही है कि बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन्स. दूसरा क्या करता है, बाय रिमूविंग एक्सेस कैल्शियम थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर बॉडी में फिर भी एक्सेस कैल्शियम है तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये एक्सेस कैल्शियम को बाहर निकाल देगा. समझ में आया, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज योर पैराथायरॉयड ग्लैंड.
पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। नाउ पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, वही थायराइड के लोब पीछे में है, राइट, वन पेयर ऑन ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देयर आर 4 लोब्स या फिर 2 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट, 1 पेयर ऑन ईच थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ऑन ईच थायराइड ग्लैंड, ठीक है, राइट। पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीजेस अ हार्मोन व्हिच इज नोन एज पैराथॉर्मोन। क्या हार्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन रिलीज करता है। पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या है, दिस आल्सो रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम, दिस आल्सो रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम रेगुलेट करता है। लेकिन इसका रेगुलेशन क्या है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम। ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, ये ब्लड कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा। अगर थायरोकैल्सिटोनिन याद है, दैट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। सो इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैसे, बाय रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, बोन से पूरा खरोच के निकालेगा, राइट, इसको पूरा तोड़ के निकालेगा बोन से, ठीक है, राइट, बाय रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, राइट, एंड ऑल्सो by stimulating the JG cells of kidney, by stimulating the JG cells of kidney, जब JG cells of kidney को stimulate करेगा, JG cells of kidney क्या रिलीज करेगा, कैल्सिट्रायोल, ठीक है, JG cells of kidney क्या रिलीज करेगा, कैल्सिट्रायोल। नाउ कैल्सिट्रायोल कॉजेज, कैल्सिट्रायोल क्या करेगा, कैल्सिट्रायोल कॉजेज दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम दी गट से आपका एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। सो बाय स्टिमुलेटिंग द जेजी सेल्स ऑफ किडनी व्हिच इन टर्न रिलीजेस कैल्सिट्रायोल कॉजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट्स। तो अल्टीमेटली इस दोनों तरीके से ब्लड में क्या रहेगा, ब्लड में हमारा कैल्शियम लेवल क्या होगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिसऑर्डर्स, राइट, अगर आपका हाइपोसिक्रेशन होता है, अगर क्या होता है आपका हाइपोसिक्रेशन, इफ यू हैव हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन का हाइपोसिक्रेशन मतलब, ठीक है, कम सिक्रेशन हो गया। अगर कम सिक्रेशन हो गया तो अगर हमारे ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, विल सफर फ्रॉम वाइल्ड कंट्रैक्शन, वाइल्ड स्पैजम्स व्हिच इज कॉल्ड एज टिटेनी, वाइल्ड कंट्रैक्शन या फिर वाइल्ड स्पैजम्स व्हिच इज कॉल्ड एज टिटेनी। समझ में आया। Whereas अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो मैक्सिमम बोन से क्या करेगा, कैल्शियम को तोड़ के निकालेगा, दिस इज नथिंग बट योर ऑस्टियोपोरोसिस, समझ में आया। सो दिस वाज द पैराथायरॉयड हार्मोन, ये उसका फंक्शन है, एंड दिस इज द डिसऑर्डर्स। नाउ इंटरेस्टिंग इनफ, थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड टुगेदर रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड टुगेदर रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे, जैसे थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करेगा which would decrease the blood calcium level, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करेगा which would decrease the blood calcium level, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोकैल्सिमिक। अगर ज्यादा ब्लड कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो गया, इट विल ट्रिगर दी पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा, इट वुड इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, एंड दैट इज व्हाई पैराथायरॉयड इज आल्सो नोन एज हाइपरकैल्सिमिक। तो अगर ये ज्यादा इंक्रीज हो गया तो ये जाके किसको ट्रिगर करेगा, थायराइड को, एंड दस इट कंटिन्यूज। सो बोथ ऑफ देम क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करके लेवल पे रखेगा, एंड दस बोथ रेगुलेट दी ब्लड कैल्शियम लेवल। समझ में आया, राइट। सो दस आवर थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड टुगेदर रेगुलेट दी ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड क्या है, थाइमस, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ थाइमस इज प्रेजेंट, पहला क्वेश्चन तो इधर आता है, ये कहां पे लोकेटेड है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, सामने की तरफ ही है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, ठीक है, राइट। ये क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थाइमोसिन। क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थाइमोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज थाइमोसिन कंट्रोल्स द डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। समझ में आया। प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन्स, एंड थाइमोसिन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि ये पार्ट, कि एज वी ग्रो ओल्ड द थाइमस ग्लैंड क्या करता है, डीजेनरेट कर जाता है। एज वी ग्रो ओल्ड द थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट, एंड दस ओल्ड पीपल सफर फ्रॉम लेस इम्यूनिटी। ओल्ड पीपल का क्या होता है, इम्यूनिटी लेस होता है। तो मतलब वही है ना, कि जब हम लोग जितना बूढ़े होते जाएंगे, हमारा थाइमस ग्लैंड उतना ही डीजेनरेट होता जाएगा। एंड सिंस थाइमस ग्लैंड वाज कंट्रोलिंग व्हाट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, अल्टीमेटली बॉडी के प्रोटेक्शन को
राइट, इनेट हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, तो उसको मेंटेन कर रहा था। तो धीरे धीरे जितना हम ओल्ड होते जाएंगे वी आर बिकमिंग इम्यून कम्प्रोमाइज्ड, इसलिए आप देखोगे ओल्ड एज पीपल को बीमारी बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। So this is one of the reason कि as we grow old the thymus gland degenerates and thus old age people suffer from less immunity, right? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड चला आता है क्या, एड्रिनल ग्लैंड, राइट। और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है न्यू एनसीईआरटी में, ये याद रखना, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एवब ईच किडनी, ठीक है, पहले एंटीरियर पोजीशन देके रखा था, अभी क्या बन गया, वन एवब ईच किडनी, राइट। The gland is composed of two types of tissues, centrally located called the adrenal medulla and outside lies the adrenal cortex, right? यहाँ पे ये वाला याद रखना, डिजीज पहले देके रखा है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स बाय whom, एड्रिनल कॉर्टेक्स, alters the carbohydrate metabolism, alters the carbohydrate metabolism causing weakness and fatigue, energy नहीं मिलेगा, weakness and fatigue leading to a disease that is called as your what, that is called as your Addison's disease। तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से अगर हार्मोन नहीं निकल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, इट विल सफर फ्रॉम वीकनेस एंड फैटिग एंड दस दे विल कॉज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज योर एडिसन्स डिजीज, ठीक है। नाउ अगर हम लोग डिटेल में आए, इफ यू लुक एट द डिटेल्स, ठीक है, राइट, तो यही है, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड व्हिच इज लोकेटेड वन अबव ईच किडनी, ठीक है, राइट। और इसको देखोगे तो ये डिवाइडेड है ना, इसको अगर हमने क्रॉस सेक्शन निकाला, आउटर में क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स, इनर में क्या मिलेगा, मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला दोनों मिला के क्या बनाता है, एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है, राइट। आउटर कॉर्टेक्स का देखो, नाउ एड्रिनल ग्लैंड देखने में तो बहुत मतलब देखने में छोटा ही है, ठीक है, राइट, लेकिन इसका ना पार्ट में डिफरेंस है, सो कॉम्प्लेक्स ग्लैंड। जैसे मैं बताता हूं कि आउटर कॉर्टेक्स क्या है, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, व्हेयरएज इनर मेडुला क्या है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, राइट। नाउ सिंस ऑरिजिन इज डिफरेंट, जो प्रोटीन का नेचर बन जाता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे इन केस ऑफ आउटर कॉर्टेक्स द हार्मोन नेचर क्या है, स्टेरॉइड, व्हेयरएज एक्टोडर्मल में क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन वाले, राइट। सो आउटर कॉर्टेक्स का ऑरिजिन क्या है, मेसोडर्मल, इनर मेडुला का ऑरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल। हार्मोन नेचर आउटर कॉर्टेक्स का क्या है, स्टेरॉइड, इनर मेडुला का क्या है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये लाइफ सेविंग हार्मोन्स है, व्हेयरएज इनर मेडुला वाला क्या करते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, या फिर मोस्ट फेमसली हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, फियर और फ्लाइट जो भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ when you come to hormones of inner medulla, these are together called as catecholamines, इसको together क्या बोलते हैं, catecholamines, जिसमें adrenaline and noradrenaline शामिल है, ठीक है। so these are hormones, these are called as catecholamines, जिसमें क्या क्या शामिल है, adrenaline as well as noradrenaline। अभी ये क्या था, इमरजेंसी हार्मोन था, दैट मीन्स इमरजेंसी केस में रिलीज होगा, ठीक है। अभी इमरजेंसी केस में रिलीज होगा तो बॉडी को एक इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए बॉडी का क्या क्या कंडीशन होता है कि इट कॉजेस अलर्टनेस, ये अलर्टनेस कर देगा, बॉडी गोज इनटू ए हाई अलर्ट मोड, और अलर्टनेस जब होता है तो स्वेटिंग भी आता है, कोल्ड स्वेट बोलते हैं, स्वेटिंग, प्यूपिलरी डायलेशंस, आंख बड़े बड़े हो जाते हैं, राइट, टू सी एवरीथिंग क्लियरली, राइट, पाइलो इरेक्शन, हेयर रेजिंग हो जाता है, हेयर रेजिंग, ठीक है, हेयर रेजिंग और बॉडी। इसके अलावा आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके साथ साथ रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑल्सो इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर देखोगे एक सीक्वेंस है भाई, आपको पहले अलर्ट कर दिया, रेडी कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है, हेवी ब्रीदिंग कर रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन खींच रहा है एंड दस ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कर रहा है, देयर बाय प्रोवाइडिंग विद एनर्जी। अभी उसी एनर्जी को लेके यू आइदर रन और यू आइदर फाइट, दैट इज योर चॉइस। समझ में आया कि नहीं है? सो दैट इज व्हाई you have heard the term adrenaline rush, यही adrenaline rush है, ठीक है। so this is because of the catecholamines, ठीक है। अभी इस एनर्जी को लेके तुम फाइट करो, इस एनर्जी को लेके तुम फ्लाइट करो, भागो, ये तुम्हारा मर्जी, क्लियर है। so these are the hormones of inner medulla, ठीक है। now when you come to outer cortex, when you come to adrenal cortex, again the adrenal cortex is divided into three parts। adrenal cortex कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 parts, starting with
जोना ग्लोमेरुलोसा पहला पार्ट, उसके बाद जोना फेसिकुलेटा विच इज द वाइडेस्ट रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स का वाइडेस्ट रीजन जोना फेसिकुलेटा, तो जोना ग्लोमेरुलरिस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस टुगेदर मेक अप योर एड्रिनल कॉर्टेक्स। नाउ कमिंग टू दी हार्मोन्स, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट, ठीक है, इनमें जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है इनको क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जोना ग्लोमेरुलोसा का ग्रोथ और ग्रुप ऑफ हार्मोन्स क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जोना ग्लोमेरुलोसा का ग्रुप ऑफ हार्मोन्स क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अभी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन क्या है, मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। मेन हार्मोन कौन है, एल्डोस्टेरोन। इसको रेगुलेशन, इसका सिक्रेशन रेगुलेट कौन करता है, इफ यू रिमेंबर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एंजियोटेंसिन 2 right stimulates adrenal gland, adrenal cortex releases what, aldosterone। तो इसका रेगुलेशन क्या हो गया, कौन करेगा, रास। फंक्शन क्या है, adrenal aldosterone जब आता है it causes reabsorption of sodium and water from the DCT, it increases the reabsorption of sodium and water from DCT, conditional reabsorption। ये तो था, इसके अलावा मेरे को क्या याद रखना है, it decreases the absorption of potassium and phosphate, it decreases the absorption of potassium and phosphate। दूसरा, it maintains the water and electrolyte balance, it maintains the osmolarity and blood pressure। समझ में आया, राइट। तो फंक्शन में क्या क्या आ गया, फंक्शन में क्या आया, it increases the reabsorption of sodium and water from DCT, it decreases the absorption of phosphate and potassium, it maintains water and electrolyte balance, that is osmolarity as well as blood pressure। समझ में आया। So this was the function of the hormones of जोना ग्लोमेरुलोसा। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा में आएगा द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स इन जोना फेसिकुलेटा इज व्हाट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या सीक्रेट करता है, मेन हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल। मेन हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल। और इसका रेगुलेशन कौन करता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये रेगुलेट कौन करता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, राइट। सो इसका फंक्शन क्या है कि ये जो कॉर्टिसोल है, इसका सिक्रेशन कब बढ़ता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये इंक्रीज होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ क्या करता है, इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बाय इंक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आरबीसी फॉर्मेशन, and it also acts as a immunosuppressor। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, इट एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसर। क्लियर है, राइट। सो कॉर्टिसोल increases during the time of anxiety या फिर डिप्रेशन, it increases the blood glucose level increase करता है, which causes by causing the breakdown of fat, protein and carbohydrate, it helps in RBC formation and it also acts as a immunosuppressor, ठीक है। उसके अलावा लास्ट क्या आ गया, जोना रेटिकुलरिस। लास्ट क्या आ गया, जोना रेटिकुलरिस। इट सिक्रेट्स सेक्स हार्मोन इन बोथ मेल एंड फीमेल, इट सिक्रेट्स सेक्स हार्मोन्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में क्या सिक्रेट करता है, एंड्रोजन, डी हाइड्रोक्सी एपी एंड्रोजन सिक्रेट करता है। डी हाइड्रोक्सी एपी एंड्रोजन क्या करता है, इट स्टिमुलेट करता है। क्या स्टिमुलेट करता है, फेशियल हेयर, ऑक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे फेशियल हेयर, ऑक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स के ग्रोथ को कौन रेगुलेट करता है, एंड्रोजन, डिहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोजन, दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस। इन केस ऑफ फीमेल क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्राडायल। क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्राडायल। और एस्ट्राडायल का फंक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या स्टिमुलेट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्लियर है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर हार्मोन्स ऑफ योर एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता ही है, राइट। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या आएगा हम लोगों का, पैनक्रियस। नाउ पैनक्रियस क्या है, इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दैट मींस इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, व्हेयरएज एंडोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन्स, ठीक है, राइट। नाउ दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन सीक्रेट करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, व्हिच इज अराउंड 1 to 2 million ऑफ द एंटायर पैनक्रियाटिक टिश्यूज, और जो 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू होता है, ठीक है, राइट। सो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, the endocrine part secreting hormones, this endocrine part is islets of Langerhans.
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितना है 1 to 2 मिलियन व्हिच कंस्टिट्यूट्स 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू। ठीक है, अभी इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप ऑफ सेल मिलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन दिस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पहला कौन है अल्फा सेल, दूसरा कौन है बीटा सेल, तीसरा कौन है डेल्टा सेल। सो इट इज मेड अप ऑफ अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या करता है, अल्फा सेल रिलीजेस ग्लूकागॉन, बीटा सेल क्या रिलीज करता है इंसुलिन, whereas delta cells releases somatostatin that regulates the alpha and beta cells। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो delta cells releases somatostatin that regulates alpha and beta cells। ठीक है, now when you are coming to the function, जब हम लोग फंक्शन पे आते हैं, when you are coming to the function, अल्फा सेल्स क्या रिलीज करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, इट इंक्रीजेस दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन क्या करेगा, इट इंक्रीजेस दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करेगा। एज इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एज इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो, ग्लूकागॉन इज ऑल्सो नोन एज हाइपर ग्लाइसेमिक। तो ये कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन को बनाता है। सो बाय प्रोमोटिंग, पहला क्या, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, प्रोमोटिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दैट मींस ग्लाइकोजन, हमारा जो एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में कहां स्टोर होता है, मसल्स में, ग्लाइकोजन में। तो जब ग्लूकोज चाहिए होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के आप ग्लूकोज निकालो। सो बाय कॉजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, राइट, इट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, रिलीजिंग ग्लूकोज। नेक्स्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेस द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इट डिक्रीजेस द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। की ग्लूकोज तो बॉडी में इंक्रीज कर दे रहा है, लेकिन उसके हायर लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये सेल को डिक्रीज कर देगा, सेल को लेस परमिएबल बना देगा टू अपटेक द ग्लूकोज। तो ना सेल ग्लूकोज ले पा रहा है और ऐसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस से ग्लूकोज ब्लड में बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Whereas when you come to insulin, insulin का फंक्शन क्या है, it decreases the blood glucose level, it decreases the blood glucose level। और जब ये blood glucose level डिक्रीज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक। कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करेगा, बाय इंक्रीजिंग द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, बाय इंक्रीजिंग द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल्स से ज्यादा ग्लूकोज खिंचवाएगा, बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लूकोज इन द सेल, सेल में ग्लूकोज के लिए परमिएबिलिटी भी इंक्रीज करवा देगा। तो परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो गया सेल का, और सेल ज्यादा ग्लूकोज भी खींच रहा है, तो धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। एंड दूसरा, बाय प्रोमोटिंग ग्लाइकोजेनेसिस, बाय प्रोमोटिंग व्हाट, ग्लाइकोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। करेक्ट है, क्लियर है, राइट। सो दिस इज अल्टीमेटली ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज द डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर में अगर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन डिक्रीजेस, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन डिक्रीजेस, इट कॉजेस डायबिटीज मेलिटस, इट कॉजेस डायबिटीज मेलिटस। देखो एक कॉमन कंसेप्शन क्या है कि अगर ग्लूकागॉन बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो डायबिटीज होगा, नहीं, ग्लूकागॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आप चीनी ठूस रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका इंसुलिन हार्मोन फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली, तो ग्लूकोज सेल में एब्सॉर्ब हो जाएगा, डायबिटीज का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन अगर बाय चांस इंसुलिन में गड़बड़ हो रहा है, इंसुलिन सिक्रेशन में गड़बड़ हो रहा है, देन यू सफर फ्रॉम व्हाट, डायबिटीज। व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन इन डायबिटीज, राइट, देयर इज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, देयर इज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यूरिन में भी, जैसे हम लोग को पीसीटी में मालूम था क्या 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड में ट्रिमेंडस ग्लूकोज इंक्रीज हो गया, पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं होगा, दैट मींस वो पीसीटी से नीचे आना चालू हो जाएगा, और पीसीटी से नीचे आना चालू हो जाएगा मतलब क्या, वो यूरिन में आएगा। सो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉजेज द इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। और अगर यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा है, दैट मींस व्हाट, इट विल कॉज द यूरिन टू गेट कंसंट्रेटेड, और इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या होगा, बॉडी से सारा वाटर क्या होगा, यूरिन में आएगा, सारा वाटर क्या होगा, यूरिन में आएगा, एंड दस देयर विल बी व्हाट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, राइट, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ वाटर इन द यूरिन व्हिच विल कॉज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, दैट मींस बॉडी में कोई पानी ही नहीं है, राइट, तो क्या रहता रहेगा, प्यास लगता रहेगा, राइट, देयर विल बी इंक्रीज इन थर्स्ट, डिहाइड्रेशन, प्लस आप देखोगे इंसुलिन कम है, राइट, इंसुलिन कम है तो सेल तो ग्लूकोज नहीं ले पा रहा है, तो सेल को तो एनर्जी नहीं मिल रहा है, इवन दो द ग्लूकोज इज अवेलेबल, राइट, इन द ब्लड, बट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंसुलिन द सेल कैन नॉट टेक इन द ग्लूकोज।
तो बॉडी को, सेल को क्या, बॉडी को क्या लगता रहेगा कि खाना ही नहीं है, तो देयर विल बी अ टेंडेंसी टू ऑलवेज ईट, ठीक है. सो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ हंगर एंड दस देयर विल आल्सो बी improper oxidation of fat which will lead to the formation of ketone bodies, ठीक है. तो if there is increase in blood glucose level, there will be increase in glucose in urine, there will be increase of water content in urine which will cause frequent urination, there will be increase in thirst, there will be increase in hunger, there will be improper oxidation of fat leading to the formation of ketone bodies. अगर ये सारे characters मौजूद है पेशेंट में, द पेशेंट इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि देयर इज समथिंग called as diabetes insipidus. There is something called as diabetes insipidus which is also known as false diabetes. ये होता क्यों है? There is also frequent urination which is one of the prime characteristic of diabetes mellitus. लेकिन यहाँ पे जो frequent urination है, it is not followed by all of this. यहाँ पे नहीं होता है. यहाँ पे frequent urination क्यों हो रहा है? Right? Because ADH receptors in the body are damaged या फिर non receptive हो जाता है. ADH receptors में प्रॉब्लम हो जाता है. अगर ADH रिसेप्टर्स नॉन फंक्शनल है, दैट मींस ADH हार्मोन आके बाइंड नहीं करेगा, ADH हार्मोन नहीं बाइंड करेगा, सो देयर विल बी नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी. देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, तो वाटर कहां जाएगा? ब्लैडर से होके बाहर ही निकलेगा ना. तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. सो ADH रिसेप्टर्स बॉडी आर डैमेज रिलेटेड टू कंडीशन नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, दिस इज नॉट फॉलोड बाय दिस, सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज फॉल्स डायबिटीज. क्लियर है? So this was the disorder which is important from the point of view of your pancreas. Next क्या आता है? Next हमारा गोनाड्स आता है, टेस्टिस एंड ओवरीज, जो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे, बट वी विल डिस्कस इट फ्रॉम आवर बुक हियर. एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि a pair of testis is present कहाँ पे? In the scrotal sac, that is the outside the abdominal cavity in male individuals. The testis perform dual function as primary sex organ as well as an endocrine gland. तो ये primary sex organ का भी function है and endocrine gland. Testis is composed of what? Seminiferous tubules, stromal or interstitial tissues. Correct है? The Leydig cell or interstitial cells which are present in the intertubular space produce a group of hormones called as androgens. ठीक है? Mainly क्या है? टेस्टोस्टेरोन. तो इसी का function हमको देखना है. ठीक है, तो क्या बोला? टेस्टिस परफॉर्म्स अ डुअल फंक्शन ऑफ एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स and stromal or intestinal tissues. The Leydig or interstitial cells which are present in the intertubular space produce a group of hormones called androgens, mainly testosterone. Now androgen का function क्या है? Androgens regulate the development, maturation and function of the male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, urethra etc. तो जितना भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, सबके ग्रोथ और रेगुलेशन को कौन मेंटेन करता है? एंड्रोजेंस. दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स के ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस एक्सेट्रा. प्यूबर्टी के टाइम से ये लोग ये काम करना चालू करते हैं. दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एक्सेट्रा. करेक्ट है? नाउ एंड्रोजन आल्सो प्लेज अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड्रोजन नहीं होगा नहीं तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे होगा? ठीक है. एंड्रोजन आल्सो एक्ट्स ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इट एक्ट्स ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो. These hormones produce anabolic या फिर synthetic effect on protein and carbohydrate metabolism. Protein and carbohydrate metabolism. समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है. So these are in short the function of your testis, जिसको डिटेल्स में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिवीजन में देखेंगे. ठीक है. Similarly, you will have your ovaries. Females have a pair of ovaries located in the abdomen. Ovary is the primary female sex organ which produce the ovum during menstrual cycle. In addition, ovary also produces two groups of steroid hormones. ध्यान रखिएगा. क्या क्या? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. Ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissues. The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. After ovulation, the ruptured follicle is converted and called corpus luteum, which produces mainly progesterone. Estrogen produces wide-ranging actions which has such as stimulation of growth
activities of female secondary sex organs and development of growing ovarian follicles, right? Appearance of female secondary sex characters, example high pitch of voice, etc. and mammary gland development. Estrogen also regulate female sexual behavior. ठीक है. Progesterone supports pregnancy. Pregnancy hormone progesterone को बोलते हैं. Progesterone supports pregnancy. Progesterone also act on mammary glands and stimulate the formation of alveoli, that is sac-like structures which store milk and milk secretion. Clear है? So this is in short हम लोग का क्या है? This is in short हम लोगों का function of testis and ovaries. ठीक है. Now यहां तक हम लोगों का क्या खत्म हो गया था? यहां तक हम लोगों का ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज खत्म हो गया था. एंड अल्टीमेटली क्या आता है? डिफ्यूज सेल्स एंड टिश्यूज, जिसमें हम लोग को हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से क्वेश्चन आता ही है, राइट? ठीक है. हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यूज which are not endocrine glands. For example, the atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone. क्या hormone? Peptide hormone called as atrial natriuretic factor और ANF. हमको मालूम ही है ANF क्या था? vasodilator था, right? And thus it decreases the blood pressure. When blood pressure is increased, ANF is secreted which causes dilation of the blood vessels. This reduces the blood pressure. ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है? juxtaglomerular cells of kidney, it also produces what hormone? A peptide hormone called as erythropoietin which stimulates erythropoiesis, formation of RBC. ये हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ऑलरेडी देखा ही है, करेक्ट है? So juxtaglomerular cells of kidney produces a peptide hormone called as erythropoietin which stimulates erythropoiesis, which is the formation of RBC. Next, endocrine cells present in different parts of the gastrointestinal tract, very very important, secrete four major peptide hormones, namely gastrin, secretin, cholecystokinin CCK and gastric inhibitory peptide GIP. So gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. Gastrin का function क्या है? Gastrin acts on the gastric glands and stimulates the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen. ठीक है. तो अगर गैस्ट्रिन नहीं सीक्रेट होगा, ना मेरा गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, ना पेप्सिनोजेन आएगा. पेप्सिनोजेन नहीं आएगा तो एक्टिव पेप्सिन नहीं बनेगा, पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन हमारा क्या नहीं होगा? डाइजेस्ट नहीं होगा. Secretin, it acts on the exocrine pancreas. मतलब pancreatic juice stimulates the secretion of water and bicarbonate ions. जैसे हम लोग का स्टोमक से जब इंटेस्टाइन में जाता है, स्टोमक में एसिडिक नेचर रहता है, इंटेस्टाइन तो बेसिक है, तो अगर स्टोमक से डायरेक्टली एसिडिक नेचर वाला फूड हमारा इंटेस्टाइन में चला गया तो इंटेस्टाइन तो परफोरेटेड हो जाएगा. Thus, to stop this from happening, right? ये जो मेरा सिक्रेटिन है, ये सिक्रेटिन अल्टीमेटली क्या करता है? सिक्रेटिन acts on the exocrine pancreas which causes the secretion of water and bicarbonate ions. Bicarbonate ions buffer है, resist the change in pH और water pH acidic pH को dilute कर देता है. समझ में आया कि नहीं है? Cholecystokinin CCK acts in both pancreas and gallbladder and stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice respectively, whereas gastric inhibitory peptide inhibits gastric secretion and motility. Several other non-endocrine tissues secrete hormones called as growth factors. These factors are essential for normal growth of tissues and repairing and regeneration. समझ में आया कि नहीं आया? Clear है? So these are the important functions of the diffused cells and tissues which supports the organized endocrine bodies in maintaining the endocrine system. These are very very important, बहुत important functions है. Clear है? Now lastly में क्या आता है? Last में आता है हम लोग का mechanism of hormone action. Now आपको ये this is very easy. आपको दो चीज ही याद रखना है कि हार्मोन का नेचर क्या है. Why? Because the nature of the hormone would determine whether it has an intracellular receptor or it has an extracellular receptor. यही तक डिफरेंस है क्योंकि after receiving the hormone, the message from the hormone, right, कहाँ पे जाएगा? वो तो अल्टीमेटली हमारे डीएनए में ही जाएगा. डीएनए से वो क्या बनेगा? mRNA, right? mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन. सो mRNA से जो प्रोटीन बना, दैट इज द बायोकेमिकल चेंज, राइट? और प्रोटीन जब एक्सप्रेस करेगा दैट विल ब्रिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंज. तो अल्टीमेटली एक हार्मोन का एंड टारगेट क्या है? टू ब्रिंग अबाउट बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी. हार्मोन का एंड टारगेट एक ही है, राइट? बी इट बायोकेमिकल
to bring about biochemical and physiological changes. It is only difference, the difference वहीं पे आता है कि ये biochemical और physiological changes कैसे लाता है, whether by binding with intracellular receptors or whether binding with extracellular receptors, right? Now difference क्या है कि अगर आपका हार्मोन which is a primary messenger, which is a primary messenger is a lipid soluble hormone, right? जिसमें स्टेरॉइड आ जाते हैं, सेक्स हार्मोन जिसमें स्टेरॉइड आएगा, सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, T3 T4 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है ना, तो ये क्या होगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग का क्या है, लिपिड बाइलेयर से बनता है, तो ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स डायरेक्ट एंट्री हो जाता है, डायरेक्ट। सो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स रहता है, राइट, साइटोप्लाज्म में भी, इनसाइड द न्यूक्लियस में भी, ठीक है, राइट। सो ये जो हार्मोन्स है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स है, इनका रिसेप्टर कहां पे रहेगा, इंट्रासेलुलर। इनका रिसेप्टर कहां पे रहेगा, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, राइट। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से ये हार्मोन्स आके डायरेक्टली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में बाइंड करेगा, डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा, डीएनए इसको एमआरएनए में कन्वर्ट करेगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा व्हिच इज अ बायोकेमिकल चेंज, एंड प्रोटीन जब एक्सप्रेस करेगा दैट विल ब्रिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंज। डिफरेंस किसके लिए है, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स जैसे प्रोटीन हार्मोन्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, पेप्टाइड हो गया, अमीनो एसिड डिराइवेटिव्स हो गए, समझ में आया कि नहीं आया, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, अमीनो एसिड डिराइवेटिव्स, इन सब का क्या है, इन सब का क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होता है। बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल दे कैन नॉट डायरेक्टली एंटर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे कैन नॉट डायरेक्टली एंटर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनका क्या रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। तो दीज प्राइमरी हॉर्मोन्स दे कम एंड बाइंड विद दी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, एंड तब क्या होता है, जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, देयर इज जनरेशन ऑफ अ सेकंड मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर सिस्टम, देयर इज अ जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर। तो ओनली फॉर वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, और जब एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, अंदर में क्या जनरेट हो जाता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स ही प्राइमरी मैसेंजर का मैसेज लेके कहां तक लेके जाएगा, डीएनए के पास, राइट। नाउ द सेकेंडरी मैसेंजर्स इंक्लूड साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, साइक्लिक जीएमपी, ठीक है, राइट, एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट दैट इज IP3, राइट। सो CMP, calcium, GMP, IP3, these are secondary messengers, ultimately takes the messengers of the primary hormones and they take it to the DNA, DNA में फिर से वही सीक्वेंस, mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन which is a biochemical change, and प्रोटीन जब एक्सप्रेस करेगा that will become the physiological change, that will become the physiological change, ठीक है। This is how your hormone works। इसमें आपको ये वाला याद रखना है कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन में क्या क्या एग्जांपल देके रखा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, आइडोथायरोडिन, थायराइड हार्मोन्स, राइट, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, एपिनेफ्रिन। तो ये वाला एग्जांपल्स याद रखना है, इसको एग्जांपल्स में उठा के आपको पूछ सकता है कि किसके पास एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर है, किसके पास इंट्रासेलुलर। अगर लिपिड सोल्यूबल है, स्टेरॉइड है, सेक्स हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, आइडोथायरोडिन है, इनका क्या होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। लेकिन अगर प्रोटीन हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, तो इनका क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर वर्किंग थ्रू सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, राइट। सो दिस इज इन शॉर्ट योर केमिकल कंट्रोल का केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का चैप्टर है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम भी भर के क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आएगा। समझ में आया, पूरा पॉइंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा समराइज्ड वर्जन में दिया है। रीड दिस, राइट, एंड देन कम एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। करेक्ट है, इसको एक बार देखोगे वन शॉट में, गारंटीड के साथ बोल सकता हूं, जितना भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहां तक हम लोगों का क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट खत्म होता है। When we come with the next day revision program, next day revision program में we'll have the human reproduction chapter। ठीक है, समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।